This is the format of balance sheet basically, and there's the name of the company. Balance sheet asset is given over there, and in rupees, rupees in lakh, thousand, whatever it is, that is written over there. Particulars, note number, figure of the current year, figure of the previous year, and likewise you have done equity and liability. This is the main heading for all the liability side. Shareholder fund, next heading, share application money pending allotment, non-current liabilities, and then the next heading is current liabilities over there, and there this is the subheading. Now the next heading is, and that there you will do the total. Now the subheading is, next heading is for asset side is assets. Now this is there are only two categories, non-current asset and current asset. So if you are talking about the non-current asset, that is including tangible asset, intangible asset, capital work in progress, intangible asset under development. So first of all, there is a tangible asset. When you are talking about the tangible asset, that means the asset which can be their existence can be felt, they can be touched, they are known as the tangible asset. And not intangible asset, these assets are the assets which cannot be felt, their existence cannot be only their existence can be felt, but then it cannot be touched, they are known as an intangible asset. So in the tangible asset, what is included in tangible asset, they are basically land, building, plant, computer, vehicle, likewise item included in tangible asset. And intangible asset, goodwill, brands, computer software, copyright, likewise item included in the intangible asset. So the question can be asked where the goodwill can be shown. Then you will answer subheading intangible asset, and the main heading is fixed assets. Main heading is non-current asset. You will write down over there, and that is intangible asset, subheading fixed asset, and the main heading is non-current asset. Main heading is written over there, and these are the subheading. Now next thing is the question can ask that capital work in progress. So capital work in progress, basically what is capital work in progress over here? So when you are talking about the capital work in progress, that means these are the fixed assets which are basically under construction, which are not completely made. They are known as the capital work in progress, and the money has been given for their completion, so they are known as the capital work in progress over there. So capital work in progress, basically they are the fixed tangible asset which are under construction, such as building, plant and equipment, anything can be there. Now intangible asset under development, what is that? They are like patent, intellectual property right, or some software which are being developed by the company. They are not fully developed, they are basically under progress, work in progress, basically you can say. That is intangible asset under development. Next thing is non-current investment. Non-current investment basically of two types, trade investment and other investment. Trade investment refers to the investment, basically the company purchased this, invested in shares or debenture of the other company. And other investment, they are basically the investment right and all. And they are basically investment in preference share, investment in government security, debenture, mutual fund, partnership firm, or likewise they are known as the non-current investment. So non-current investment, definitely investment for more than 1 year, and which is held by the company with the purpose of selling but not to having or keeping it to retain them. And non-current investment are having the basically categorization, that is a trade investment and other investment. So trade investment, I have told you that this is an investment made by the company in terms of shares and debenture of other company, and to promote its trade and business, definitely for selling it out, not to keeping it up over there. And then other investment, that including the investment property, that refers to the land and building held for the capital appreciation or to earn the rental income. So and next is the investment in equity instrument, like in the securities investment can be there. Now the next thing is deferred tax assets. When accounting income is less than taxable income, when the tax on accounting income is less than tax on taxable income, that is known as deferred tax asset, that comes into force. And then next is the long-term loans and advances. So long-term loans and advances, if you're talking about, they are the more than 12 months have been taken, because this is non-current asset. So more than 12 months have been taken from the date of balance sheet to be received. So there are two types, that is capital advances and security deposit. So capital advances basically is advances given for acquiring fixed asset are called the capital advances. And next the security deposit. These are the securities which are deposited with some authority. So they are given for the period for more than 12 months from the date of balance sheet,
and they are known as long term loans, लॉन्ग टर्म एडवांसेस। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट आप करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टेलीफोन के लिए, या इस तरह से डिपार्टमेंट में सबमिट कराते हो, ये सब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आती है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दो ही आइटम आई आपकी, कैपिटल एडवांसेस एंड सिक्योरिटी एडवांसेस। कैपिटल एंड एडवांसेस जो आप फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो एडवांस देते हो वो है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो डिपार्टमेंट में सबमिट कराते हो मोर देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद है अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट में बेसिकली आपके आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, जिसको आपको 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट विच टेक्स मोर देन दैट। और दूसरा आता है अनमोटाइज एक्सपेंसेस, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस, जो कि अब आपके सेम वैसे तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस अगर कोई किसी केस में 12 मंथ्स के बाद ये फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट दे आर टू बी लाइकवाइज दे आर टू बी राइट ऑफ, सो दे आर नोन एज द नॉन करंट एसेट। सो ट्रेड रिसीवेबल जो 12 मंथ से ज़्यादा टाइम लेते हैं विच इज टू बी पेड ऑफ, और अनमोटाइज एक्सपेंसेस ये आपके अदर नॉन करंट एसेट में आते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट एसेट। करंट एसेट बेसिकली दे आर नोन एज द करंट एसेट जो आपकी विच इज टू बी रिलाइज विद इन वन अकाउंटिंग विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल, and that is a primary purpose for being traded, and then intention for the sale or consumption in the company's normal operating cycle। कंपनी का एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल इन द कंपनी? देखो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली क्या होता है, जिसमें कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करेगी, फिर फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करेगी, फिर कैसे सेल ऑफ करेगी, ऑल दीज इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर बेसिकली ये आपका करंट लायबिलिटी, करंट एसेट को डिसाइड करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सबसे पहले आप इन्वेंट्री परचेज करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, फिर इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस कितना टाइम रहेगी, फिर उसके बाद इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की कितने टाइम आप कितने महीने आपके पास रहेगी, फिर फिनिश गुड्स आपकी कब सेल होएगी ट्रेड रिसीवेबल में, यानी कि कब वो डेटर्स में कन्वर्ट होएगी, और कब आपको कैश मिलेगा। ये सब चीज़ें आपकी प्लस करके ऑपरेटिंग साइकिल निकलता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग and their realization in cash or cash equivalent, where the nominal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have been duration of 12 months। जहाँ आपको लगता है कि नहीं पता लगाया जा सकता, वहाँ 12 मंथ्स का मान लो, अदरवाइज इट कैन बी मोर देन 12 मंथ्स। तो अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल या कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको रिसीव हो जाती है, तो दे आर नोन एज द करंट। अदर वो ऑपरेटिंग साइकिल को क्रॉस कर जाती है, उसका टाइम पीरियड क्रॉस कर जाती है, तो दे आर नॉट नोन एज अ करंट एसेट, दे विल बी कंसीडर्ड एज नॉन करंट एसेट। ठीक है, इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है करंट, बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल से जो आप करंट लायबिलिटी डिसाइड करते हो। तो अब आपने ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड किया यहाँ पर अपनी कंपनी का 9 मंथ्स का, लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड है, जो भी आपका ट्रेड रिसीवेबल है, वो आपको मिल रहे हैं सपोज करो 8 मंथ में, तो दे आर कंसीडर्ड एज नाउ करंट लायबिलिटी, क्योंकि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 17 मंथ्स। आप 17 मंथ्स में आपको, मगर आपकी एक्सपेक्टेड जो है वो ट्रेड रिसीवेबल हो रहा है वो 15 मंथ, इससे कम में हो रहा है ना, ऑपरेटिंग साइकिल से कम में हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो नोन एज करंट एसेट। यहाँ पर भी आपका 10 मंथ्स आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, और ये मगर इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट विद इन 12 मंथ्स आपको मिल रहा है, तो देर ऑल्सो नोन एज द करंट एसेट। और यहाँ पर 10 मंथ्स है आपका, 15 मंथ्स में 12 मंथ्स को क्रॉस कर रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल को भी क्रॉस कर रहा है, तो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ करंट, दे आर कंसीडर्ड एज अ नॉन करंट एसेट। 24 मंथ्स आपका ऑपरेटिंग साइकिल है एवर, और आपको 20 मंथ्स में मिल रहा है, तो दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज द करंट एसेट, क्योंकि ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल से आपको मिल रहा है। बट 12 मंथ्स की बात नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल को कंसीडर किया जाता है कंपनी में। देन 10 मंथ आपको ऑपरेटिंग साइकिल है, और आपको 12 मंथ्स में ये रिसीव हो रहा है, तो ये आपको करंट एसेट में माना जाएगा, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स वाली कंडीशन को ये कंप्लीट कर रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि किस बंदे से अगर आपको पेमेंट मिल रही है, चाहे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर से मिल रही है, चाहे BR से मिल रही है, वो आपको कितना टाइम में मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड अपना डिसाइड करते हो किस तरह से करंट एसेट है और किस तरह से आपकी नॉन करंट एसेट है। सेम ही तरीका आपका करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को लेकर भी होता है कि आप कितना टाइम आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, कितना टाइम में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट इन्वेस्टमेंट। सो करंट इन्वेस्टमेंट बेसिकली देयर द करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट आर टू बी डन विच टेक्स within 1 year, within 12 months from the date of the purchase. They can be the investment in equity, the investment in preferred share, investment in government debenture, mutual fund likewise. And the next thing is inventories. Definitely inventory is current asset here.
So inventory means stock held for the purpose of trade in the normal course of business. So inventory can be of raw material, work in progress, finished goods, stock in trade, stores and spares, loose tools. They both are the item which can be considered as the inventory. तो इसमें ध्यान रख लेना स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स. स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब जो आपकी जो फिक्स असेट्स होती हैं, जो आपकी टेंजिबल असेट्स होती हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो आपने स्टोर्स एंड स्पेयर्स में जो सामान रखा हुआ है वो, और लूज टूल्स रखे हुए हैं उनको फिक्सअप करने के लिए वो, ये सब आपके कंसीडर होते हैं इन्वेंट्रीज के अंदर. ठीक है. देन ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल में आपके डेटर्स और बीआर दोनों जाएंगे. ट्रेड रिसीवेबल को आपने कब करंट मानना है और कब नॉन करंट मानना है, इसके लिए आपको ऑपरेटिंग साइकिल कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि हमने अभी किया. इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आता है बैलेंस विद बैंक, चेक इन ड्राफ्ट ऑन हैंड, जो अभी आपने नहीं करा है डिपॉजिट बैंक में, कैश इन हैंड एंड अदर एनीथिंग अदर विच इज़ टू बी कंसिडर्ड एज कैश. सो दे आर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. इसके बाद नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में वही लोन्स एंड एडवांसेस जाएंगे विच आर टू बी एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस. तो इसमें भी ऑपरेटिंग साइकिल और बैलेंस शीट की डेट जैसे सेम जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल डिसाइड किया था वैसे ही करेंगे. अदर करंट एसेट्स, सो दे आर इंक्लूडिंग बेसिकली अदर करंट एसेट में आपका आएगा डिविडेंड रिसीवेबल, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवांस टैक्स, अनमोटाइज एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. इस तरह की जो आपकी किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, दे आर कंसिडर्ड एज अदर करंट एसेट ओवर देयर. तो ये आपकी कुछ सब हेडिंग्स हैं. ठीक है. आपसे पूछा जाएगा अनमोटाइज एक्सपेंसेस विच इज़ टू बी सेट ऑफ विद इन द 12 मंथ. तो ये कहाँ जाएंगे, आप बताओगे इसको अदर करंट एसेट, और मेन हेडिंग करंट एसेट में आप इसको शो करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से आप इसमें बात करेंगे. और आपकी आइटम आती है कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट. दे आर द नोट्स ऑफ अकाउंट्स. ये इसको नोट्स ऑफ अकाउंट्स में बिलो द बैलेंस शीट दिखाया जाता है. देन इसके अंदर कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के अंदर बेसिकली आपकी लायबिलिटीज आती हैं विच कैन अराइज इन फ्यूचर इफ द ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट. अगर ये पर्टिकुलर इवेंट होगा, ये पर्टिकुलर हैपनिंग होगी, तो ये अराइज हो सकती हैं. जैसे कि आपके अगेंस्ट किसी ने, कंपनी के अगेंस्ट किसी ने क्लेम कर रखा है, तो देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट. अभी क्लेम कर रखा है, बट इफ क्लेम इज प्रूवन राइट, then definitely the company has to pay the compensation where we are discounted from the bank and not yet due for payment. उस केस में अगर आप पेमेंट नहीं की पार्टी ने, तो कंपनी को इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ेगी. प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंटीजेंट लायबिलिटी. एंड देन गारंटी गिवन बाय द कंपनी, एनी गारंटी, कंपनी ने किसी की गारंटी दी है, और अदर मनी फॉर विच द कंपनी कैन बी लायबल, दैट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी विच इज शोन एज द नोट्स टू अकाउंट्स बिलो द बैलेंस शीट. कमिटमेंट, डेफिनेटली कमिटमेंट जो होते हैं, दे आर द अमाउंट विच इज़ टू बी पेड. देयर कंपनीज एग्रीड टू पे दिस अमाउंट टू परफॉर्म इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टन टाइम इन द फ्यूचर अंडर अ सर्टन सिचुएशन. सो कमिटमेंट इज द अमाउंट विच इज़ टू बी पे, जो आपको पे करना ही करना है. कंटीजेंट मे अराइज बट कमिटमेंट इज अमाउंट विच कंपनी हैज़ टू पे. Estimated amount of contract which is to be paid after the completion of contract. Uncalled liability on the shares and investment party paid up which is paid by the company and that can be called from the company by the others. Other commitment such as arrear of cumulative preference share, arrear of dividend of cumulative preference share, these are the commitment which company has to pay, company must pay. So they are shown as the notes to accounts below the balance sheet. So they are the contingent liabilities and commitment. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. हो सकता है आपसे पूछे गारंटी गिवन बाय द कंपनी वेयर यू हैव टू शो, देन यू हैव टू राइट दैट इज शोन अंडर द कंटीजेंट लायबिलिटी. आप इस तरह से आप ये सारी आइटम दिखा के नोट्स टू अकाउंट्स में भी दिखाओगे. इन सबकी टेंजिबल एसेट्स की बाइफर्केशन दिखानी है. सपोज करो लैंड, बिल्डिंग, ऐसे काफ़ी सारी आपके पास टेंजिबल एसेट्स हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स में टोटल करोगे. सपोज नोट्स टू अकाउंट्स का नंबर 5 है, तो यहाँ 5 नंबर डाल दोगे. यहाँ पर टोटल करोगे लायबिलिटीज़ का, यहाँ टोटल करोगे एसेट्स का. ये प्रीवियस के लिए, ये करंट के लिए, प्रीवियस करंट, तो यहाँ पर आपका टोटल मैचअप होगा. इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनेगी. ठीक है.